लास्ट टॉपिक में अपन ने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट. फ्लोरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्म, वेल डेवलप्ड प्लांट ऑन द अर्थ. रिप्रोडक्शन की जब अपन बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लोरिंग प्लांट. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज फ्लावर. Flower is reproductive organ in flowering plant. The structure of flower: four walls are present. Outer walls, calyx, second corolla, third stamen, and fourth carpel. Four part in the structure of flower. First corolla, second calyx, third stamen, and fourth carpel. First and second part also known as a accessory reproductive organ, which is not involved in reproduction process. Third part, stamen, is male reproductive organ. Male reproductive organ. And the fourth part, carpel, is female reproductive organ. तो मेन जो पार्ट है फ्लावर में, reproductive part जो है वो है stamen and carpel. Stamen include in male reproductive organ and the carpel include in female reproductive organ. Outer two walls, calyx and corolla, are accessory reproductive organ, do not involve in reproductive process. The main function of calyx and corolla, the protection of inner part, stamen and carpel. First topic in this chapter is microsporogenesis. Microsporogenesis. Micro means small, spore मतलब sperm, male gamete, genesis मतलब formation होना. तो microsporogenesis का मतलब हो गया formation of male gamete in the stamen. Formation of male gamete, also known as a pollen grain, in anther. तो डेफिनेशन हो गई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. याद रखने के लिए, माइक्रो का मतलब स्मॉल, मेल गैमेट आर ऑलवेज स्मॉल, स्पोरो स्पर्म, मेल गैमेट, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन होना. तो इट मीन्स इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, पोलन ग्रेन इन एंथर. पोलन ग्रेन्स आर ऑलवेज haploid. Number of chromosomes are half. Haploid. Pollen grain का formation, pollen mother cell which is diploid 2n. Two set of chromosomes are present, diploid. In pollen mother cell, meiosis division take place. Meiosis division. In meiosis division,
number of chromosomes are half. So pollen grains are haploid N. In one pollen mother cell, after meiosis, 4 pollen grains are produced. One pollen मदर सेल्स से 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है आफ्टर मियोसिस. तो इन माइक्रोजेनोसिस प्रोसेस के अंदर जो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें मेन जो प्रोसेस है मियोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ. मियोसिस इज ए मेन पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट पोलन ग्रेन इन एंथर. पोलन ग्रेन्स ऑलवेज आर हैप्लॉइड. पोलन ग्रेन्स जो है हमेशा हैप्लॉइड होते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ. मैनी पोलन मदर सेल्स आर प्रेजेंट इन एंथर. इन ईच पोलन मदर सेल meiosis division take place and produce haploid pollen grain. एक पोलन मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन से 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है आफ्टर मियोसिस डिवीजन. द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, 2 layers are present, outer layer and inner layer. Outer layer is axine and the inner layer is intine. Inner layer is intine. Many germ pores. Germ pores are present on the surface of pollen grain. Pollen grain. At the time of fertilization, formation of pollen tube by the intine layer. Axine layer is made up of sporopollenin chemical substance. जो पोलन ग्रेन्स की आउटर लेयर एक्साइन है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन केमिकल सब्सटेंस. स्पोरोपोलेनिन केमिकल सब्सटेंस रेसिस्टेंस पावर रखता है अगेंस्ट ड्राइनेस. तो ये जो रेसिस्टेंस पावर प्रोवाइड कर रहा है पोलन ग्रेन्स को, इस कारण पोलन ग्रेन्स लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं. बोर्ड में ये क्वेश्चंस पुटअप हुआ है, वाई पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम. बिकॉज the outer layer axine is made up of sporopollenin chemical substance and the sporopollenin have resistance power against dryness. So, structure of pollen grains: outer layer, inner layer, germ pore and nucleus. In nucleus, one set of chromosomes are present, haploid, and oily droplets, fat, stored food are present. So, structure of pollen grains. तो जो माइक्रोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है एंथर के अंदर, और कौन सी प्रोसेस से? मियोसिस डिवीजन से. And in anther, many pollen mother cells are present. In each pollen mother cell, meiosis division take place and formation of haploid pollen grains. एक पोलन मदर सेल में मियोसिस डिवीजन से 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है एंड द 4 पोलन ग्रेन्स आर एक्टिव. ऑल द पोलन ग्रेन्स एक्टिव फॉर्म में होते हैं क्योंकक्योंकि इनकी साइज़, जैसे कि नाम से क्लियर है, माइक्रो स्मॉल, इनकी साइज स्मॉल होती है. तो ये लॉन्ग टाइम तक एक्टिव रहते हैं.
तो फर्स्ट प्रोसेस माइक्रोजेनेसिस एंड द सेकेंड प्रोसेस इज मेगा स्पोरोजेनेसिस. मेगा मीन्स large, sporo means gamete and genesis means formation. तो large gamete means egg cell, formation of egg cell in ovule. तो जिस प्रकार माइक्रोजेनेसिस प्रोसेस की डेफिनेशन बनती है उसी प्रकार मेगा स्पोरोजेनेसिस की. इसमें पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें एग सेल का. एग सेल इज ए फीमेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट ऑलवेज आर लार्ज. मेगा स्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमिट इन ओवल. एग का फॉर्मेशन जो हो रहा है उसमें भी मियोसिस डिवीजन प्रोसेस हो रही है. मियोसिस डिवीजन इन एग मदर सेल. Meiosis division take place in egg mother cell and formation of haploid egg cell. After the meiosis division, formation of egg cell which is haploid. जिस प्रकार अपन ने बात की थी कि एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है. 4 pollen grains are produced and all the pollen grains are active. But in megasporogenesis, वन एक मदर सेल से केवल एक एग सेल प्रोड्यूस हो रही है. रिमेनिंग 3 आर डीएक्टिवेट गोइंग टू डीनेचर. ओनली वन एग सेल इज इन एक्टिव फॉर्म. ओनली वन सेल इज इन एक्टिव फॉर्म. तो यहाँ पे भी निट में क्वेश्चंस पुटअप हुआ है. जिस चीज़ पे मैं बार बार आपको प्रेशर दे रहा हूँ कि वन पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है एंड ऑल आर द एक्टिव. बट इन मेगा स्पोरोजेनेसिस वन एग मदर सेल से केवल एक ही फॉर्मेशन होता है, एक ही फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. 3 आर अनएक्टिव, डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. अब जो क्वेश्चंस नेट के अंदर जो क्वेश्चंस पुटअप हुआ है, हाउ मैनी मियोसिस डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 एम्ब्रियो. 100 एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए कितने मियोसिस डिविजन्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो हम जानते हैं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन वन मेल गैमेट एंड इन वन फीमेल गैमेट. जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से होता है, सिनेगेमी प्रोसेस, जिसमें एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट फ्यूज्ड होकर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं. अब अपने को 100 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना है तो अपने को 100 मेल गैमेट एंड 100 फीमेल गैमेट की रिक्वायरमेंट होगी. क्वेश्चंस में यही पूछा गया है 100 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन के लिए. तो हम जान रहे हैं कि एक एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है. तो अपने पास क्वेश्चन में 100 एम्ब्रियो पूछा गया है, तो 100 तो मेल गैमेट और 100 ही फीमेल गैमेट. और अभी लास्ट टॉपिक अपन ने बात की थी कि 100 मेल गैमेट के लिए अपने को 25 पोलन मदर सेल पीएमसी 25 पोलन मदर सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है. इसमें मियोसिस डिवीजन होगा तो 100 पोलन ग्रेन्स मीन्स मेल गैमेट, 100 मेल गैमेट का फॉर्मेशन. तो 25 पीएमसी पोलन मदर सेल्स तो 25 मियोसिस डिवीजन. और इसी प्रकार फीमेल गैमेट में 100 एक मदर सेल, 100 एक मदर सेल में मियोसिस डिवीजन. और जैसा कि अपन ने बात की थी कि
एक मदर सेल में मियोसिस डिवीजन से एक सेल का फॉर्मेशन होता है, तो 100 एक मदर सेल से 100 एग का फॉर्मेशन होगा। तो 100 एक मदर सेल्स में 100 मियोसिस डिवीजन, तो टोटल 125 meiosis divisions are required for the formation of 100 embryo। हमेशा ध्यान में रखना है कि एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, तो अपने को 100 पोलन ग्रेन मेल गैमेट बनाने के लिए 25 पोलन मदर सेल्स चाहिए, और एक के लिए एक मदर सेल से बनेगा, तो 100 एक मदर सेल्स में 100 डिवीजन मियोसिस डिवीजन, सब में एक डिवीजन होगा। एक मदर सेल्स में एक डिवीजन एक, तो 100 एक मदर सेल्स 100 डिवीजन 100 एग, तो टोटल्स आर 125। तो इसका आंसर जो है 125 मियोसिस डिवीजन आर रिक्वायर्ड।